Hey everyone, welcome to Share and Grow Connect. This is Himanshu Ashok Malhotra, and today you will get to meet one of my closest friends. Her name is Ridhima Pandit. She's a beautiful actress, a wonderful, talented artist. So let's not waste time and let's get on a conversation with her. Thank you so much for being on Share and Grow Connect. I really welcome you. I've been really wanting to talk to you. It's been very long. So thank you so much for being here. Me too, and thank you so much for waiting this long. I have been wanting to be a part of your show for so long. I follow your show regularly. There are a few things which I've taken away from your show, so I'm happy to give it back. How nice. Thank you so much. That is wonderful. I'm truly happy to hear that. Wonderful. So कैसा रहा? पहले तो बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में. हे भगवान, क्या ही बताए. So स्टार्टिंग के महीने तो बहुत मजा आया. बहुत ही यंग थी. कॉलेज में भी मैं घर पे मतलब आई यूज्ड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब. तो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ वक्त स्पेंड ही नहीं किया है बहुत सालों से. भले ही मैं उनके साथ रहती हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ. इनफैक्ट मुझे लगता है जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, they end up spending more quality time than the ones who actually stay with their parents, because Correct. we take them for granted thinking हाँ ठीक है घर जाएंगे, we're spending time. But this is the first time in my life I'm so thankful. बोलते हैं ना कि ये वो साल है जहाँ पर आपको कुछ मांगना नहीं, आपको बस शुक्रिया अदा करना है कि you are able to live a happy healthy life with a roof on your head with the ones who you love so much. In my case, like पेरेंट्स के साथ मैंने बहुत वक्त स्पेंड किया. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई इनफैक्ट कनेक्टेड विद देम बहुत अलग से. आई थिंक लास्ट मुझे याद है जब मैं 15 साल की थी, मैं इनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया करती थी कि मैं कहीं इनके साथ ट्रैवल किया करती थी. अब चलो ट्रैवल तो नहीं हो पाता, बट आई was really happy to be at home. I landed up taking a few vocational courses, voice modulation courses मैंने online किए. So ये सब बातें तो मैं बता रही हूँ कि मैं प्रोडक्टिव थी, बट मैं काफी ज्यादा अनप्रोडक्टिव भी रही हूँ. प्लीज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मेरा बेड. मैं यहाँ से उठती ही नहीं थी और सामने है नेटफ्लिक्स. मैंने कुछ नहीं किया ऐसे. मैंने दिनों तक सिर्फ मैं खाना तक मेरे रूम में खाती थी. I've had those days, but that's okay. I think life is a mix of both, so I have no regrets. I completely agree with that. हाँ, जिंदगी दोनों पहलू में होती है ना, कि एक बार ही आप बहुत लेजी हैं, चिल आउट कर रहे हैं, you don't want to come out of your bedroom, but on another side some vocational courses also happen in order to be more productive. I want to come to one of your vocational course that you were talking about, that you learned voice modulation. Yes. But रिद्धिमा को वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत है? इतनी अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं आप, इतनी अच्छी आवाजें निकालती हैं, आपको क्या जरूरत है वॉइस मॉड्यूलेशन की? मुझे बताओ. करना है ना. अच्छा, और बेटर करना है. मेरी जो स्किल्स है मैं उन्हें हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहती हूँ. अच्छा, मतलब अपने iOS को अपग्रेड करना बड़ा जरूरी है एज एन आर्टिस्ट. कुछ ऐसा ही समझ लीजिए. The thing is, मुझे हमेशा से मिमिक्री का शौक था. You know it at a personal level. Correct. हम लोग जब भी मिलते हैं तो I always mimic someone or the other. Yes. So and you do it very well. It comes very naturally to you, I think. It's like बोलते ना मेरे खून में है, because मेरे फादर जो है उन्हें भी सबको मिमिक करना बहुत पसंद है. Like हम बचपन में किसी पार्टी से वापस आते थे, so Papa used to imitate one of the uncles over there. तो धीरे करते I started imitate. Like the first person I ever imitated was my school teacher. Okay. So she was a South Indian lady, and then she used to talk like हमें वो सिखाती थी जियोग्राफी, इंदिरा मिस. और वो कुछ ऐसे बात करती थी. The stratosphere and the hemisphere, when they come together, then that's come the latitude will come together. Wow. This is amazing. But it actually reminded me of few of my teachers as well. And then she's like, you should have some apple or something. That's when you will get healthy. Your brain will start working better. You don't focus. You don't concentrate. Yeah, that's amazing. So did you pick this art as a child from your dad, or it just started to come to you and you started to polish it over a period of time? I used to see my dad being like the center of attraction every single time he used to imitate someone, and I think I've had this thing since I was a kid कि मतलब मैं भी कहाँ जाऊँ तो मैं वहाँ छा जाऊँ. Center of attention. अच्छा लगता है. जो भी बोलता है उससे नहीं अच्छा लगता, वो इंसान झूठ बोल रहा है. I think वो तो हर इंसान को अच्छा लगता है. I think as a child सबसे बड़ी desire बच्चे की ये होती है कि मुझे सबसे ज्यादा attention मिले. To be noticed, yeah, to get that kind of attention. I think it's the child always craves for that. I have not seen your younger pictures childhood. मुझे लगता है आप वैसे भी बचपन में बहुत cute होती होंगी, तो वैसे भी बहुत attention मिल जाती होगी. नहीं, मैं बिल्कुल ऊपर से mimicry. मैं बहुत ही वो बच्ची थी जो बहुत रोती है ना, जल्दी रोना आता है. मैं आज भी वैसी हूँ. मुझे अगर जब भी गुस्सा आता है ना, पहले मैं गुस्सा नहीं करती, पहले मैं रोती हूँ. फिर जब मेरा रोना निकल जाता है तब मुझे आता है गुस्सा. अच्छा, ऐसा क्यों? You're very emotional? I'm extremely emotional and extremely sensitive also.
very sensitive, very sensitive. But I'm sure you agree that this industry kind of, or any job place, you know, eventually makes you a tougher person. Because otherwise you can't survive, you know, and especially in our field. Our field is such that you've got to have thoda deaf ears bhi rakho, thoda thick skin bhi rakho. So what causes the emotional trigger in you? Disrespect. Disrespect. I'm unable to take it. Because I give so much respect to anyone and everyone around me. They say, no, kindness and respect, it doesn't cost anything. It's just your basic values. So, I mean, how difficult is it? If you weren't taught, learn, man. Basic चीजें तो सीखो, कम से कम दूसरों की इज्जत करना. Manners. Manners. कोई छोटा बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से. But क्या आप इस बात में मानते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है? बहुत हद तक मानती हूँ. जैसे कि मेरे जो मैन फ्राइडे. कौन है आपका मैन फ्राइडे? मतलब जो मेरे पर्सन है who knows my अच्छा, जो आपका ख्याल रखते हैं. Yes, my on your sets and on your shootings and everything. Yes, his name is Amar. He's very very dear to me. पर अगर आप मुझे कभी देखेंगे ना अमर के आसपास, तो मैं हमेशा चिल्लाती हूँ या मैं हाइपर हूँ, क्योंकि मुझे ना भूख लगती है. वो हैंग्री जो टर्म है ना, उन्हें पता है कि मतलब हाँ अभी मैम इतना चिल्ला रही है, ये मैम को भूख लगी है, लाइफ याद नहीं हो रही. तो इसमें मैं भेदभाव नहीं कर रही, but I can be myself in front of him. You know, so I look at it that way. सबको लगता है कि बाप रे अमर पे कितना चिल्लाती है, बट अमर और मेरा ऐसा ही है. और इतना हम फ्रैंक है एक दूसरे से कि कभी कभार शूटिंग खत्म होने के बाद बोलता है मैम आज मुझे अच्छा नहीं लगा, आज आपने मुझे सबके सामने इतना डांटा, मैं तो ला रहा था ना बिस्किट, आप होता है ऐसे, you know. So I have that kind of a relationship with everyone around me. तो रिद्धिमा को जब भूख लगती है तो बहुत गुस्सा चढ़ता है और भूख बर्दाश्त नहीं होती है. और हमको तो ब्रेक्स ही मिलते हैं 2-2 बजे. मेरा खाने का टाइम है 12 बजे का लंच. इमेजिन मेरा क्या हाल होता है. मेरी बीवी का भी सेम हाल है. उसको पता नहीं चलता कि गुस्सा किस बात पे चढ़ रहा है, और कुछ देर के बाद जब उसके मुंह में खाना ठूस दिया जाता है तो उसको लगता है अच्छा नाउ एवरीथिंग इज ओके. अम्मू को बोलना मैं भी एकदम सेम हूँ. Same to same, absolutely. So I feel looking at you and of course talking to you कि you are a pure artist and a pure entertainer. And he exactly is the same. I think blessed, some people are blessed with something, and this is your inherent talent that came to you, I think, right from the age of 6 to 7 years of age, कि वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया. और फिर पापा को देख देख के तो मुझे लग रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए पापा की तरफ से और भी ज्यादा आ गया. तो घर में सबने इनकरेज किया था एक्ट्रेस बनने के लिए? एक्चुअली हमारी जो पूरी फैमिली है, स्पेशली मेरे फादर की तरफ से, वो सब के सब डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेसर्स है. यू नो, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही है जो इस फील्ड में है. यानी कि मीडिया की दुनिया में या ग्लैमर की दुनिया जिसे कहते हैं. ये कभी रेगुलर कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकती थी हमारे घर पे कि मैं बोलूँ कि पापा मुझे ना एक्टिंग करनी. मैंने अपने मन में इतने माइंड ब्लॉक्स बना रखे थे कि माय गॉड मेरे घर पे तो कभी अलाउड नहीं होगा मुझे तो, लेकिन एक्टिंग करनी है, मैं क्या करूँ. इसीलिए मैंने एक्टिंग काफी लेट शुरू की. यही कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, मम्मी. हालांकि मैंने क्यों सोचा कि लोग क्या कहेंगे. I first went up to my father, then went to my sister and mother, and they were all extremely supportive. I wasted so many years thinking they might not be. रिद्धिमा ये बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली. इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा. ये लोग क्या कहेंगे बहुत बड़ी बीमारी है और ये बहुत सारे लोग इससे सफर करते हैं. सो आई वांट यू टू एलैबोरेट स्लाइटली ऑन द सेम एज वेल कि आपने अपनी जिंदगी के काफी साल इसलिए वेस्ट कर दिए क्योंकि आप ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे. इस चक्कर में अपने डैड से भी बात नहीं की क्योंकि आपके घर का माहौल कुछ इस तरह का था. और माहौल बहुत ही उम्दा और अच्छा था. ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली में है कि मैं बात नहीं करती. ये मेरा अजम्पशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा वक्त बर्बाद हुआ है मेरे अजम्पशन की वजह से, इसलिए अज्यूम करना बहुत खराब बात है. सेकंड, लोग क्या कहेंगे तो हकीकत है मैंने बहुत नजदीकी से उसको जिया है उस पहलू को. बिकॉज जब मैं 19 साल की थी तब मैंने थिएटर से शुरुआत की थी नादिरा जी के साथ. एकजुट में मैंने 1 साल या तकरीबन 1.5 साल तक उनके साथ प्लेस किए और मैंने बहुत 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 सीखा वहां से. और वहां से भी मुझे हमेशा बाजी कहा करती थी कि तुम एक बहुत अच्छी एक्टर हो, तुम आगे तक जाओगी. पर मुझ में ना वो कॉन्फिडेंस. मेरे पेरेंट्स को लगा ये एक ऐसे हॉबी की तरह कुछ साइड में परस्यू कर रही है, तो उन्होंने बोला करने दो उसको जो करना है. कभी हमारे घर में किसी भी किस्म की रोक टोक तो रही नहीं. फिर मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग सब लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में लग चुके थे और मैंने बोला मैं क्या करूं, मुझे भी तो काम लेना पड़ेगा. यू नो, ये प्रेशर खुद पे लेना क्यों भाई, किसने डाला? ना मेरे माँ बाप ने मुझ पर डाला. बट ये दुनियादारी में जिससे घुसना कहते हैं कि एक 20-21 की उम्र पे एक ऐसा कहा जाता है कि आपको करियर में क्या करना है, कॉलेज से बाहर आ गए अब बताइए क्या करना है. जो प्रेशर है वो मैंने खुद पर लिया. और फिर मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट
फील्ड में मैं आगे बढ़ी, जहां पर मुझे याद है, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, वो बड़ी ही फनी चीज है, बहुत ही क्यूट फेज था वो मेरे लाइफ का। जब कभी मुझे पता चलता था कि कोई कास्टिंग चल रही है, तो मैं अपने फोन पे खींचे हुए जो फोटोज हुआ करते थे, मैं वो भी ऐसे साइड में ना दूसरे मॉडल लोग के साथ भेज दिया करती थी कि मुझे देख ले, फिर मुझे बोलेगी आ जाओ तुम भी एक्टिंग करो, तो मैं फिर बोलूंगी तो पीपल वांट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है, यू हैव टू गो आउट देयर, गेट वर्क। तो लोग क्या कहेंगे, पहली बार जब मुझे एहसास हुआ कि एक बार मैं पकड़ी गई, किसी ने देख लिया, और वो लोगों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया पूरे ऑफिस में कि अरे बाप रे, देखा क्या, ऐसे भी एक्टर बनना है, अरे रे हीरोइन लोग को मैनेज करते करते तुम क्या हीरोइन बनने निकली, ये वो। तो मुझे बहुत ही वहां पर एम्बैरेसिंग महसूस हुआ। यस ऑफ कोर्स, बहुत महसूस होगा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स। मतलब मैं नेक्स्ट डे मुझे हो रहा था मैं ऑफिस जाऊं कैसे, लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपने काम में सीरियस नहीं हूँ, हालांकि मैं अपने काम में बहुत सीरियस थी, आई वाज डूइंग वेरी वेल। बहुत से लोग जानते हैं नहीं, आई यूज्ड टू बी सोनू सूद्स मैनेजर, आई यूज्ड टू बी रवीना टंडन's मैनेजर, यू नो, सो एंड दे वर रियली हैप्पी with me and till date for me, you know, they are very very happy. उसके बाद हुआ ये कि मुझे एक एड मिल गई डव की। डव सोप्स का कहना ये है कि हम लेंगे रियल लोगों को जिनकी रियल जॉब्स है, रियल है, इसी तरह से एड बनाते हैं, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेलिंग। Yeah, and I was not an actor. I'd never faced the camera. Yes, I'd been on stage, but I'd never faced the camera. और जब मुझे वो एड मिली, तब पूरे बम्बई में, पूरे इंडिया में एक्चुअली मेरे इतने होर्डिंग्स लगे, हर बस स्टॉप पर, हर मैगजीन में। तो सडनली सबका नजरिया मेरी तरफ बदल गया, मेरे ऑफिस में। तो लाइक अच्छा, मतलब हो रहा है तुम्हें तो सिलेक्शन, मतलब वो सडनली पीपल। तो मैं बोला, मैंने क्यों सोचा इतनी देर तक कि आप लोग क्या सोचोगे। ये 2 टाइम मैंने अपनी जिंदगी में बहुत वेस्ट किया, मेरे प्रेशियस 2-4 साल मैंने वेस्ट किए थे। सो गाइज प्लीज वो कभी मत कीजिएगा। आई थिंक अगर आप किसी भी कश्मकश में हैं, सो जस्ट गो फॉर इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं, मे बी यूल गेट थ्रू। मुझे इस बहुत सारी बातों में बहुत सारी बातें समझ में भी आई जो आपने कही ना। देखो, एक बात तो तय है दैट यू आर मेंट एंड डेस्टाइन्ड टू बी एन एक्टर, यू आर एन आर्टिस्ट फॉर श्योर, ये तो कंफर्म्ड है। बहुत सारे लोगों से मैं रोज मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल भी चुका हूँ इतने कई सालों में। बहुत सारे लोग नहीं होते एक्टर, लेकिन बन जाते हैं बिकॉज ऑफ फेम एडिक्शन, पावर एडिक्शन, मनी एडिक्शन, या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पैदा ही इसलिए हुए होते हैं क्योंकि उनको एक्टिंग करनी है, या फिर वो एक्टर होते हैं। सो यू आर वन अमंग्स्ट देम। लाइक आई टोल्ड अमू दैट शी इज वन अमंग्स्ट दोस, बिकॉज ये मैंने 15-16 साल पहले जब उससे मिला था, तब मैंने कह दिया था दैट यू आर born as an actress and you're meant and destined to be as an actor. Now what happens in your case, what I've been feeling also, this was your destiny, this was your calling, this was your purpose, but होता क्या है, आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के लोग क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इन सब चक्रव्यूह के अंदर हम अपनी कॉलिंग से, अपने पर्पस से थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं। And then over a period of time something happened, like you know, this is the biggest sign God could have given you, कि first ad that you do and उसके पूरे के पूरे hoardings all over India लग गए। I didn't know about this, but this is such a beautiful thing. That means God gave you such a beautiful sign that listen beta, this is your destiny, this is where you're meant and supposed and destined to be there. आप अपनी दिशा से भटक रहे हो, so आपको वापस दिशा में लेके आए, and so that you can be in alignment with your truest unique potential. So this is a beautiful part of your life. My parents, I mean, yes, I was struggling, but it's not like I was struggling in a train. By God's grace, I could afford rickshaw money. Sometimes I would get my dad's car. So you're never one person. You're made up because of a lot of people. I'm standing on everyone's head, getting things done for my mother like the way it should be. It's a cycle. Life is a cycle. My mother has taken such great care of me as a kid. कहते हैं ना कि हमें खाना भी नहीं आता था, उन्होंने सिखाया। एक चीज सीखी है लाइफ में कि uncertain times तो होने, प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं है। God above you has a plan for you.